Hi all, welcome all of you. This is Gaurav here from Disha Education. Today I'm going to share you a tip for IELTS reading. In fact, we have started a series of important tips for IELTS, and today is the first for that. And first tip we are going to share about a module for which many students feel very stressful, and that's reading, and especially academic reading. I hope you guys, those who have practiced already, or those who are pretty much familiar with the format, and those who might have done some practice too, they have understood or they've got some idea about what it is to attempt the reading. And especially if you have tried it within the time frame, you must have gone through the you know anxiety possibly, and you must have got into tension that how am I going to solve the paper in exam. Three passages, more than 2000 words, and the topic, the sentence structures are way beyond our background. तो ये जो टेंशन होती है, बच्चे, आधे बच्चे तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं एग्जाम में. दे स्टार्ट फ्रस्ट्रेटिंग, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, मतलब ब्लैकआउट. इवन दो वॉट एवर यू हैव रजिस्टर्ड इन योर ब्रेन, वो टाइम पे नहीं निकलेगा. ठीक है, तो we are going to discuss about that only, how to deal with that. And one of the important tips I'm going to share you, how you can overcome, and how you can challenge, how you can accept the challenge of reading that somebody has thrown upon you. So let's start. Tip number one, and possibly every week I would be sharing uh, one tip, or maybe twice in a week. Today I'm going to share for reading, and the tip title you can consider is how to think like examiner. How to think like examiner. Now you're probably wondering that why am I supposed to think like examiner? I'm not. I don't want to become examiner too. But believe me, if you practice this thing, lot of problems, a lot of your questions would be answered. Okay. अब I would show you the example too. अब ऐसा है कि let's take any type of question, and let's say true, false and not given. ठीक है, true, false and not given कि अब I hope true, false and not given भी आप सबको reading में से you might be feeling the toughest type of question. I mean the most tricky type of question जो आपको लगता होगा शायद, that can be true, false and not given. मतलब जो आपको ट्रू लगता है ना, वो पीछे आप आंसर देखिए फॉल्स निकलेगा. जहां पे आपने फॉल्स लिखा है ट्रू निकलेगा, और जहां पे नॉट गिवन पता नहीं. तो ये जो है चीज, लेट्स टेक एन एग्जांपल डायरेक्टली. I'll give you simple sentence. Don't try to relate that with the practical world. And recently I just found one news about the Atal Tunnel was the first one, was the first which ever built in the Indian history. I'll correct it once again. The Atal Tunnel, the Atal Tunnel was first ever built under the river. What was the sentence? The Atal Tunnel, I think near Himachal Pradesh. Recently, government has inaugurated that tunnel, the longest tunnel. So the Atal Tunnel was the first ever built under river. आपको ढूंढना है ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन. अब मान लीजिए पैसेज में आपको एक सेंटेंस मिल गया है, The Atal Tunnel was built under the river. ठीक है, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसको ट्रू लिखने की कोशिश करेंगे. मतलब योर आंसर्स आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स गिविंग इट ट्रू बिकॉज यू फाउंड ऑलमोस्ट द थिंग्स दैट यू सपोज टू फाइंड, और आपने लिख दिया ट्रू. तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड जो था, देखो ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन की बात करें, यहाँ पे हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ना एक आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा.
है ना। जैसे कि ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन में आपको मिलेगा एक limitation वाला word. You will find a kind of word which probably would be adding the limitation of something, or maybe broadening the stuffs. So those words can exaggerate the entire subject in even in narrow terms too. तो ये जो लिमिटेशन वाले वर्ड है ना, वो काफी बार बच्चों को परेशान करता है, मतलब उसी से आंसर चेंज होते हैं। and especially if it and especially if it is a problem between identifying false and not given, होती है प्रॉब्लम इन दोनों में। मतलब स्टूडेंट्स यूज टू कम एंड आस्क यूजुअली, सर ये फॉल्स एंड नॉट गिवन में बहुत दिक्कत होती है, इसका कुछ बता दीजिए। तो अगर नॉट गिवन आंसर है, मान लीजिए एग्जामिनर को नॉट गिवन आंसर लेना है, तो एग्जामिनर ना ये लिमिटेशन वाले वर्ड से गेम खेल देगा, ठीक है। तो क्या आपको पता है कि कौन से जो काइंड ऑफ वर्ड है कैन बी कंसिडर्ड अंडर लिमिटेशन वर्ड? तो ये जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया, द अटल टनल वाज फर्स्ट एवर बिल्ट अंडर द रिवर, यहां पे एक वर्ड था फर्स्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहली टनल ये थी। अब पैसेज में ये दिया है कि अटल टनल रिवर के नीचे बनाई गई है, मगर फर्स्ट है या नहीं है, क्या ये सेटिस्फाइड है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हाउ कैन यू एबल टू answer this as a true when you don't know about whether it is first or not? And same it is for false too. How can you able to contrast it when you don't even know whether it is first or not? ठीक है, तो इसका आंसर आप नॉट गिवन लिख सकते हैं जब कोई पर्टिकुलर एक वर्ड मिसिंग है, ठीक है, और जनरली वो हो जाएगा लिमिटेशन वाला वर्ड जो है। अब ना आप एग्जामिनर की तरह सोचिए, जब आप एनालिसिस करते हैं ना, नाउ कम टू द पार्ट ऑफ वेयर आई वांट टू ब्रिंग यू टुडे। आज की जो हमारी टिप है ना, वो यहाँ पे रिलेट कर रही है, जो आपको एनालिसिस में ज्यादा यहाँ पे इसको यूज करना है। मतलब एनालिसिस, इसका मतलब क्या? अच्छा, तो आप में से जो प्रैक्टिस शुरू कर दी है ऑलरेडी, ठीक है, उसकी जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप आंसर चेक कर रहे हो, ठीक है। आफ्टर आंसर वॉट एवर द रॉन्ग आंसर्स दैट यू गॉट स्पेशली इन रीडिंग, क्या आप इसका एनालिसिस करते हो? क्या आप इसको देखते हो? आप ट्राई करते हो टू फिगर आउट व्हाई इट गॉट रॉन्ग? अगर आप करते हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग एनालिसिस, ठीक है। और अगर आप नहीं करते हो तो भैया शुरू कर दीजिए, आइल्स निकलेगी नहीं अगर आप एनालिसिस नहीं करते तो जो एनालिसिस करते हैं और जब आप ट्राई करते हैं कि वेयर यू गॉट रॉन्ग एंड वेयर यू माइट हैव मिस्ड समथिंग, दैट टाइम यू नीड टू थिंक लाइक दिस। जो आज की टिप है वो ये एरिया पे यूटिलाइज करनी है, जो मैंने आपको बताया, थिंक लाइक एन एग्जामिनर, ठीक है। जब आप ये लाइन मिल रही है, यही एग्जांपल से ले ले कि द अटल टनल वाज बिल्ट अंडर द रिवर, ठीक है। या फिर मान ले पैसेज में लाइन ऐसी है, फर्स्ट इट वाज फाउंड द अटल टनल वाज बिल्ट अंडर द रिवर। ये पैसेज में लिखा है। स्टेटमेंट क्या है? द अटल टनल वाज फर्स्ट एवर बिल्ट अंडर द रिवर। सेंटेंस में जो दिया हुआ है ट्रू फॉल्स के अंदर में, इसका मीनिंग क्या है कि अटल टनल ना सबसे पहली ऐसी टनल है जो नदी के नीचे जिसको बनाई गई है। फैक्ट को चेक मत कीजिए, वी आर नॉट टॉकिंग राइट नाउ अबाउट फैक्ट, हो सकता है ये गलत है, मतलब इन टर्म्स ऑफ फैक्ट। स्टेटमेंट में ये दिया है कि अटल टनल सबसे पहली ऐसी टनल है जो रिवर के नीचे बनाई गई। और पैसेज में क्या है, आपको पैसेज में से फैक्ट चेक करना है। पैसेज में क्या दिया है? फर्स्टली इट वाज फाउंड द अटल टनल वाज बिल्ट इन द अंडर द रिवर। उसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले ये ढूंढा गया कि अटल टनल जो है वो रिवर के नीचे बनाई गई है। क्या ये दोनों का मीनिंग आपको सेम लग रहा है? सिमिलैरिटीज क्या है दोनों में? सिमिलैरिटीज की बात करें तो दोनों में एक चीज सिमिलैरिटी है जो है अटल टनल, ठीक है। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि अंडर रिवर, ठीक है, टनल बनाई गई है। तीसरी चीज जो सेंटेंस में बता रहे हैं वो ये है कि ये सबसे पहली ऐसी टनल थी। और तीसरी चीज जो यहां बता रहे हैं पैसेज में वो ये है कि
पहले ये ढूंढा गया, सबसे पहले ये ढूंढा गया कि अटल टनल ना रिवर के नीचे बनाई गई है। क्या दोनों के मीनिंग में आपको लग रहा है कि सिमिलर है? एक ऐसा बोल रहा है, मैं वापस आपको इसलिए बोल रहा हूं, ये बार बार आपके माइंड को मैसेज देना पड़ेगा। एक बार में आपका माइंड ना एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये काफी नजदीक चीज है और ये शब्द की माया जाल है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दोनों चीज, एक बोल रहा है कि अटल टनल सबसे पहले बनाई गई थी, ऐसी टनल है जो नदी के नीचे है। दूसरा, सबसे पहले यह ढूंढा गया था कि अटल टनल रिवर के नीचे बनाई गई है। दोनों में फर्क लग रहा है आपको? बहुत फर्क है, ठीक है। पैसेज में तो ये दिया गया है कि सबसे पहले ये ढूंढा गया अटल टनल वॉज बिल्ट अंडर रिवर, जबकि हमें क्या ढूंढना था कि क्या ये पहली है जो रिवर के नीचे बनाई गई है। अब पैसेज के हिसाब से ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। पैसेज में ये टनल ऐसी पहली थी जो रिवर के अंदर था, वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आप सोचोगे सर ये तो हो रहा है ना, फर्स्ट वर्ड तो लिखा है अंदर, है ना, पैसेज में फर्स्ट इट वाज फाउंड दैट, तो ये तो लिखा है सर। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो थोड़ा थोड़े से यू आर गोइंग आउट। अब मीनिंग समझने की ट्राई करें, वर्डिंग्स मैच मत करें। ज्यादातर बच्चे वर्डिंग्स मैच करने में मीनिंग नहीं समझ पाते और गलत लिख कर आते। यहाँ पे मीनिंग में क्या है? फर्स्ट इट वॉज फाउंड अटल टनल वॉज बिल्ट अंडर रिवर, सबसे पहले ये ढूंढा गया कि अटल टनल रिवर के नीचे। डज इट मीन दैट अटल टनल ही वो पहली जो वो टनल है जिसको रिवर के नीचे बनाया गया था? रिवर के नीचे बनाने वाली टनल ये पहली है, क्या ये मीनिंग सेटिस्फाई हो रहा है? ये सेटिस्फाई नहीं होगा। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां पे फर्स्ट जो यूज किया है पैसेज में, दैट इज रेलेवेंट टू व्हेन अटल टनल वाज फाउंड। सबसे पहले उसके बारे में क्या ढूंढा कि भैया ये जो है वो रिवर के नीचे बनाई गई। हाँ, इन दैट वे दिस फर्स्ट वर्ड इज यूज्ड इन पैसेज। जबकि सेंटेंस में हमें जो फर्स्ट वर्ड यूज किया है दैट इज रिलेटेड टू द टाइम व्हेन दिस टनल वाज बिल्ट, और उस टाइम पे बाकी कोई नहीं थी, ये पहली थी जो नदी के नीचे बनाई गई थी। समझ में आ रहा है? बहुत वास्ट डिफरेंस है। और हो सकता है कि जो फर्स्ट पैसेज में जो दिया है, फर्स्ट इट वाज फाउंड दैट टनल वाज बिल्ट अंडर रिवर, अब यहाँ पे टनल जब रिवर के अंदर में बनाई गई थी तब वो ही पहली थी या नहीं, उसके बारे में वी आर नॉट श्योर स्टिल, ठीक है। वी आर नॉट श्योर अबाउट वेदर दैट द टनल विच इज बिल्ट अंडर रिवर, दिस कंस्ट्रक्शन, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज फॉर द फर्स्ट टाइम और नॉट, ये नहीं पता है हमें। ये ब्रिज के बारे में, ये टनल के बारे में सबसे पहली चीज हमने क्या ढूंढी, ये बताया है। देखो माइनर डिफरेंस है, ढूंढने की कोशिश कीजिए। अब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, द स्टेटमेंट दैट इट इज गिवन इन द ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, यहाँ पे आंसर नॉट गिवन आएगा। इवन दो यू फाउंड ऑल द वर्ड्स सिमिलरली, फाइनली यू गॉट फर्स्ट ऑल्सो, टनल ऑल्सो, रिवर ऑल्सो, अटल ऑल्सो, बिल्ट ऑल्सो, सब कुछ वर्ड्स मिल रहे हैं पैसेज के साथ, स्टिल द आंसर विल बी नॉट गिवन। द रीजन बीइंग वी डोंट नो कि ऐसी नदी के नीचे जो बनाने वाली, ऐसे बनने वाली जो टनल है, ये पहले ऐसी थी या नहीं, मतलब पहली ऐसी टनल थी या नहीं इस टाइप की कंस्ट्रक्शन में। दिस वी डोंट नो फ्रॉम द पैसेज। अब आप ये सोचिए, मान लीजिए आपने ये दोनों ढूंढ लिए, व्हेन यू यूज्ड टू डू एनालिसिस, तब आपको क्या सोचना है? ठीक है, आपने ये कैच कर लिया कि हाँ जी यहाँ पे आपने गड़बड़ की है, यू हैव मिस्ड हियर इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पैसेज एंड दिस सम सिंक्रोनाइजेशन दिस। आपको ये सोचना है कि एग्जामिनर ने यहाँ पे पैसेज, मतलब ये सेंटेंस था, है ना, और ये पैसेज है, पैसेज में भी ये जो लाइन दे दी है और ये लाइन में भी ये जो वर्डिंग्स दिए हुए हैं, ये सारे वर्डिंग्स मैच हो रहे हैं। मतलब इतना इजी दे दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आइल्स वी ऑल नो, मतलब एक साल से भी ज्यादा टाइम लगते हैं क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने में। आपको बताएं, आपके हाथ में जो क्वेश्चन पेपर है आइल्स का, है ना, इट माइट बी जस्ट ए क्वेश्चन पेपर फॉर यू, बट टू डिजाइन दैट क्वेश्चन पेपर इट हैज टेकन मोर देन 1 year for the designers. It passes through many stages, multiple stages. It starts from the raw material, from the item writers, and they collect all the things and they go with the number of stages.
by hiring consultant and all those things. I don't want to go into that one. How that is available publicly. You can go and you can watch all Cambridge videos. ठीक है. अब 1 साल से ज्यादा टाइम लगाते हैं ये लोग क्वेश्चन डिजाइन करने में. तो ये जानना है हमें जब आप एनालिसिस करते हैं कि एग्जामिनर ने क्या सोच के यहाँ पे इतना इजी दे दिया है. इतना इजी तो होगा नहीं, है ना. तो वहां पे आपको कॉशन रखना है. मतलब ये है कि जो आपको इतना इजी जब मिल रहा है, ट्राई नॉट टू ट्रैप इन दैट. वो दरअसल ट्रैप है. वो दरअसल ट्रैप है. और ऐसे ट्रैप जो बनाने हैं ना, बिलीव मी, आंसर ढूंढने से ज्यादा ऐसे ट्रैप बनाना जो टास्क है ना, दैट इज मोर टफ. और ये ऐसे भी ट्रैप होने चाहिए कि जिससे रीडर को हो कि हाँ ये आंसर हो सकता है. ट्रैप आर बेसिकली टू टेम्प्ट एप्लीकेंट्स टू डाइवर्ट देयर आंसर टू पर्टिकुलर पॉइंट, टू इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन. इसीलिए ट्रैप बिछाए जाते हैं. और अगर आप इन्फ्लुएंस हो गए तो फिर आपके आंसर गलत होंगे. आप कम्युनिकेशन नहीं समझ पा रहे हैं. ठीक है. तो क्या आप ऐसे ट्रैप कैच कर पा रहे हैं? आपको यहाँ पे ये अंडरस्टैंड मिलना चाहिए. यू गॉट लेसन हियर वन थिंग व्हेन यू एनालाइज्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि हाँ फर्स्ट जो है ना वो बेसिकली रखा गया था ट्रैप, टनल, अटल, है ना, अंडर रिवर. ये जानबूझ के ट्रैप बिछाया गया था ताकि मेजॉरिटी स्टूडेंट ना इसको ट्रू आंसर दे. How good we are to understand the trap, how good we are to recognize the trap, or how good we are even when we are attempting the question paper in exam condition that we can able to find the traps. जैसे ही आप ट्रैप ढूंढ रहे हैं, you know, you are actually hitting the mindset of examiner. Yours and examiner's frequencies are matched. ये करना है हमें. जैसे आप मान लीजिए फाइंड द हेडिंग. चलिए, फाइंड द हेडिंग आल्सो इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट ऑफन स्टूडेंट ट्रैप हो जाता है उसी के अंदर. चलिए मैं एनालिसिस पार्ट की बात कर रहा हूं. आपने 5 passages आर देयर एंड हाउ मेनी ऑप्शंस वुड बी देयर? लेट्स से अराउंड 7 और 9. ऐसा ही होता है ना. 5 passages, 8 और 9 हेडिंग के ऑप्शंस आपने अटेम्प्ट किया. यू हैव चेक्ड इट. 5 में से 3 गलत है, 2 सही है. ठीक है. और ये जो 3 गलत है ना, आपने ट्राई किया कि क्यों गलत है, सही आंसर क्या आ रहा है, आपने सही आंसर क्यों आ रहा है. अप टू हियर यू हैव एनालाइज्ड एंड यू फाइनली गॉट कन्विंस्ड आल्सो कि हाँ एक्चुअली में यही आंसर आना चाहिए. यू गॉट कन्विंस्ड. ठीक है. फिर दूसरा देखा, दूसरे में आपका गलत था, उसका करेक्ट आंसर अच्छा ये आ रहा है, ये भी आपने देखा पूरा, मतलब पैसे, हाँ यही सही है, मतलब दिस इज मोर कन्विंसेबल कंपेयर टू दैट प्रीवियस. तीसरा जो गलत था वो भी आपने एनालाइज किया, अंडरस्टैंड. अब आप जा रहे नेक्स्ट टेस्ट पे अटेम्प्ट करने के लिए. आई वुड स्टॉप यू हियर एंड आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आपने जो आंसर किए थे, है ना, और वो गलत निकला, हो सकता है आप ट्रैप में फंस गए हो. वुड यू बॉदर फाइंडिंग ट्रैप? क्या आप ट्रैप ढूंढने की कोशिश करेंगे? चलिए छोड़िए, 5 पैसेज है ना. 5 तो करेक्ट आंसर है. कितने हैं एक्स्ट्रास, कितने रह गए? 4 रह गए. कंसिडर इट 9 टोटल ऑप्शन. तो 4 एक्स्ट्रा है. अब सही आंसर तो आपको मिल गए हैं, 5 पैसेज, 5 करेक्ट. 4 एक्स्ट्रा जो ऑप्शंस है ना यहां पे आपको ट्रैप्स मिलेंगे, क्योंकि 4 तो एक्स्ट्रा है, वो 4 तो किसी ऑप्शंस में नहीं जाएंगे. तो ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस उन्होंने सेट किए हैं, ये डेफिनेटली ट्रैप है. और ये जो एक ऑप्शन होगा ना एक्स्ट्रा, दैट ऑप्शन इज ए ट्रैप फॉर वन पर्टिकुलर पैसेज. क्या आप ये कैच कर पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पैसेज है जिसका आपको टाइटल ढूंढना है, और वो पैसेज की एक शुरुआत हो चुकी थी, वन आइडिया इज ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड, और नीचे वो आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है. ठीक है. एग्जाम्पल में ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड Nations report of unemployment in the world shows that
85% of people do not believe in working overtime. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, और एग्जांपल में क्या है कि यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट के हिसाब से ज्यादातर लोग बिलीव नहीं करते ओवरटाइम में, ठीक है। और पैसेज मतलब जो टॉपिक है पूरा पूरा जो पैसेज है दैट इज रिलेटेड टू दी एम्प्लॉयमेंट, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अब एक पैसेज बीच में से लिया और उसमें भी बीच वाला एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल करके लिखा है वहां पे, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशंस के। अब टाइटल में एक ये है, एक टाइटल में एक टाइटल आपको ये मिल गया, यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, ये ट्रैक था। आपने ये अभी तो ढूंढ लिया कि ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस है ना उसमें से एक ऑप्शन आ रहा है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट इतना क्लियर तो मुझे दिख रहा है पैसेज के बीच में, तो ये हेडिंग में क्यों नहीं, उसके जगह में कौन सा हेडिंग आ रहा है, देखो, अच्छा ये आ रहा है, हाँ जी यही ज्यादा कन्विंसिंग। तो ये इसको डाला क्यों, इसको एक्स्ट्रा में क्यों डाला, ताकि एग्जामिनर को पता था कि ज्यादातर बच्चे इस ये जो पैसेज है पूरा पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट तो एज इट इज मिल जाएगी बड़े शब्द में, है ना, एक्रोनिम जैसा लिखता है, और वो डायरेक्टली यहाँ पे भी हाईलाइट हो जाएगा, वो टिक कर देंगे चले जाएंगे। क्या आपने ऐसे सोचा था एनालिसिस में कि हाँ ये डायरेक्ट दिखने वाले जो चीज है ना उसको ट्रैप में कन्वर्ट कर दिया एग्जामिनर ने? वेल इट डजंट कंपल्सरीली नेसेसरी कि ये हर जगह सेम हो, मगर ज्यादातर केस में। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है ये आंसर तो है नहीं, यू नीड टू एनालाइज कि ये ट्रैप बिछाया गया है ज्यादातर लोगों को ट्रैप करने के लिए जो अंडरस्टैंड नहीं करते पैसेज को, एंड दोज हु आर यूजुअली रिलाई ऑन द काइंड ऑफ वर्ड्स एंड sentence structure only, they don't bother understanding the message or the meaning of that passage, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड करना है। फिर दूसरा जो 4 एक्स्ट्रा है, पहला निकल गया, इसका फायदा क्या होगा पता है, मान ले आपने ये बाकी 3 जो एक्स्ट्रा थे उसको भी एनालाइज कर दिया, है ना। पहले को जब आपने एनालाइज किया, मतलब जो यूनाइटेड नेशंस वाला, उसको आपने पैराग्राफ 3 में रखा था, जो गलत हुआ आपका, और जो सही आंसर आपने एनालिसिस भी कर दिया। उसका मतलब ये है ना कि ये जो यूनाइटेड नेशंस वाला था वो पैराग्राफ 3 के लिए ट्रैप था। कैन आई से दैट ये पर्टिकुलरली डिजाइन किया गया था आपको पर्टिकुलर पैराग्राफ में गलत आंसर देने के लिए। मान लीजिए अब आपको ये सारी चीजें पता है, ठीक है, यू नो ऑल दिस थिंग्स, ट्रैप्स एंड यू नो काइंड ऑफ व्हाट एग्जामिनर यूज्ड टू थिंक व्हेन दे डिजाइन क्वेश्चन पेपर, एंड नाउ यू आर अटेम्प्टिंग रीडिंग। अब आपने पैसेज 3 पढ़ लिया, अब आप ऑप्शंस को स्कैन कर रहे हैं, है ना, ऑप्शंस को स्कैन जब कर रहे हैं, ठीक है, तब आपने पढ़ा ये ऑप्शन यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, ठीक है। अब एक बार तो आप अलर्ट हो जाएंगे, भैया इतना इजी तो ये देंगे नहीं आईएलटीएस वाले, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट तो हो नहीं सकती, मैंने पैसेज पढ़ा, है ना, आइडिया कॉन्सेप्ट अलग है, इसको जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल दिया था, तो भैया ये तो कंफर्म नहीं होगा, ये तो मैं श्योर हूं। और इससे ज्यादा खुशी मुझे कहां पे होनी चाहिए कि मैंने ये ढूंढ लिया कि अब ये जो यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट, ये जो टाइटल है ना, वो बाकी ऑप्शन में भी नहीं आएगा, बिकॉज दैट वाज पर्टिकुलरली डिजाइन एज अ ट्रैप फॉर दिस पर्टिकुलर पैसेज। तो आपने उसके लिए सही आंसर भी ढूंढेंगे और इसका ट्रैप भी ढूंढेंगे, इवेंचुअली यू विल एलिमिनेट 2 ऑप्शंस आउट फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एनालिसिस करते हैं ना तब ऐसा सोचिए, जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस रह जाते हैं इन फाइंड द हेडिंग, उसको मत छोड़िए, उसको छोड़िए मत, उसको ढूंढिए कि ये कौन से पैसेज के लिए इसको ट्रैप के तरह बिछाया गया था। नेक्स्ट टाइम जब आप अटेम्प्ट करेंगे, तब जब आप ऑप्शन स्कैन करेंगे, यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट ट्रैप फॉर दैट पर्टिकुलर पैसेज विद द करेक्ट आंसर। अगर वो ट्रैप डिजाइन किया गया है तो, अगर ट्रैप डिजाइन किया गया है तो हाउ स्मार्टली यू आर एबल टू थिंक। मतलब क्या आपको ये नहीं लगता ये आप एग्जामिनर की तरह ही सोच रहे हैं? एग्जामिनर को भी 9 ऑप्शंस तो ढूंढने हैं ना व्हेन दे यूज्ड टू डिजाइन क्वेश्चन पेपर। आपके लिए 5 ऑप्शन है, एग्जामिनर के लिए तो 9 ऑप्शन है, और उसको बाकी 4 ऑप्शन भी ऐसे ही सेट करने पड़ेंगे ना जो देखने से तो सही ही लगे, वहां पे भी कितनी इंटेंसिटी उनको लगती है। तो यहाँ पे आप वही हिट कर रहे हो, आप ट्रैप भी ढूंढ रहे हो, आप इसका सही आंसर भी ढूंढ रहे हैं, 2 ऑप्शन एक साथ निकाल रहे हो एक पैसेज के लिए। हालांकि हर पैसेज में ट्रैप हो तो जरूरी नहीं है, मगर मिलेगा आपको ट्रैप।
मल्टीपल चॉइस क्या है? मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस में ज्यादातर बच्चों को यहाँ पे भी दिक्कत होती है कि 3 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये चीज होती है कि एक ही सही आंसर है, ये तो कंफर्म है, 3 गलत आंसर है, मतलब कि 3 है ना ट्रैप्स बिछाए गए, है ना। तो 3 ट्रैप्स आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसमें से एक तो होगा जो पैसेज में दिया गया है मगर क्वेश्चन से रेलेवेंट नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा होगा चारों के चारों ऑप्शन पैसेज में दिए हैं, सर ये तो चारों मुझे लग रहे हैं, अब क्या आप ही बताइए ऑप्शन क्या है। अब इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बच्चे कि पता नहीं क्या कर देंगे, 4 ऑप्शन सर चारों के चारों दिए हैं, क्वेश्चन देखिए आप। तो वेल, अब इतनी मेहनत कर रहे हैं आइल्स के एग्जाम, मतलब जो क्वेश्चन है पेपर प्रिपेयर करने में, तो ट्रैप्स तो बिछाएंगे ही। आपको कंसंट्रेशन बहुत रखनी पड़ेगी व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एज इन एग्जाम कंडीशन, है ना। आपको कंसंट्रेशन में सारे जो एंगल है ना वो मैच होने चाहिए। मतलब क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, मान लीजिए क्वेश्चन में 3 क्लॉजेस है या 3 आइडियाज के बारे में बात की है, वो तीनों के तीनों आइडिया अगर आपको कहां जहां पे भी मिल रहे हैं पैसेज में, है ना, उसी के रिलेटेड आपको 4 में से एक ऑप्शन होना चाहिए। बाकी 3 ऑप्शन कैसे होंगे पता है? दूसरा जो ऑप्शन होगा, मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सेकेंड ऑप्शन जो है ना वो पैसेज में तो है मगर वो ये क्वेश्चन से रेलेवेंट नहीं है, वो पैसेज में 4-5 लाइन के बाद है, इट डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद द क्वेश्चन इट इज बीन आस्क्ड। तो आपको दूसरा ऑप्शन भी मिलेगा पैसेज में, एक बार तो ऐसा होगा कि दूसरा भी है। अब तीसरा ऑप्शन जो है ना, तीसरे ऑप्शन में आधी चीज, पूरी सेंटेंस होगी आधी चीज पैसेज में है और वो भी क्वेश्चन से रेलेवेंट, मगर जो दूसरी आधी चीज है ना उसके बारे में पैसेज में नहीं दिया है। आपको टेम्प्ट कर रहे हैं, आप आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और बिलीव मी, आपको जो ये जो ऑप्शन मिल रहा है ना, है ना, इसमें सारे वर्डिंग सेम रहेंगे। और जो सही ऑप्शन वाला था ना, फर्स्ट ऑप्शन सपोजिंगली, उसमें एक भी वर्ड मैच नहीं हो रहा है, पूरा सिनोनिम है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा उल्टा, ठीक है। तो ऐसा है कि मीनिंग आपको चेक करना है और ट्रैप्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ट्रैप्स आइडेंटिफाई करने का अगर राइट फेज है तो दैट इज ड्यूरिंग योर एनालिसिस पीरियड, ठीक है। एनालिसिस पीरियड ही आपको मजबूत करेगा, आपको सिखाएगा कि कैसे कैसे ट्रैप्स बिछाए थे इसमें। अरे आप टिक करके रखो, 40 क्वेश्चन है, 40 के 40 में व्हेन यू आर एनालाइजिंग अंडरलाइन करे पैसेज में, ठीक है, अंडरलाइन करे पैसेज में कि यहां से मुझे पहला आंसर मिला है, और एक मार्जिन में लिख दीजिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे करके 1 to 40 सीक्वेंस देखे, देखे सीक्वेंस, सीक्वेंस से भी आपको पता चलेगा कि हाँ यार क्या पैटर्न है। तो किस पैटर्न में एग्जामिनर ने सेट किए हैं आंसर, हाउ दे हैव मेड आंसर्स hide behind certain package, maybe synonym, maybe sentence structure or something else like that। तो ये आपको जानना है। मैं नॉट गिवन, देखो नॉट गिवन भी आपको सिखा के जाएगा। वी ऑल नो दैट द ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन कम्स इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर ओनली, ठीक है। मान लीजिए 7 ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन है, तो पहला आपको जिस एरिया में से मिलेगा पैसेज में से पहला क्वेश्चन, उसके नीचे ही आपको सेकंड मिलेगी, थर्ड मिलेगी, फोर्थ। मान लीजिए फर्स्ट का ट्रू आया है, सेकंड का फॉल्स आया है, थर्ड का नॉट गिवन है एंड फोर्थ का अगेन ट्रू है, मतलब सेकंड और फोर्थ के बीच में एक नॉट गिवन है ना। जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपने ये देखा कि नॉट गिवन था थर्ड में, आपने अगर नॉट गिवन लिख दिया है करेक्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आपने ट्रू या फॉल्स लिखा है तो डेफिनेटली आपने कुछ चीज तो पढ़ी होगी बिटवीन दोस टू एरियाज वेर यू फाउंड सेकंड एंड फोर्थ, जहां से यू वर इन्फ्लुएंस टू आंसर आइदर ट्रू और फॉल्स। तो वो जगह पे जाइए, उसको अंडरलाइन कीजिए, पहले तो उसको देखिए, एनालिसिस कीजिए कि हाउ इट इज नॉट रेलेवेंट, हाउ इट इज नॉट गिवन, कन्विंस्ड हो गए, वहां पे भी एक बार अंडरलाइन कर दीजिए और मार्जिन में लिख दीजिए नंबर 3। मतलब ये ट्रैप था उसके लिए, ये वर्ड से एग्जामिनर वांट टू इन्फ्लुएंस यू टू गिव आइदर आंसर ट्रू और फॉल्स। वहां पे भी आप नंबर 3 मार्जिन में, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई ट्रैप है ही नहीं ना, है ना, पैसेज में। तो ये चीज आपको सीखनी है एंड दैट यू कैन डू वेल इन
while you were doing analysis. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे. आई होप काफी सारी चीज आपको इतने छोटे वीडियो में से मिल गई होगी. एक तो think like examiner that you can do while you are doing analysis, and number two, when you are thinking like analysis, what you're supposed to find mainly is all the traps. Believe me, जब all मतलब 40 क्वेश्चंस होते हैं ना, 40 क्वेश्चंस आप कर देंगे, उसमें से नियरली आपको 30 ऑड के ट्रैप्स बिछाए जाते हैं. हार्डली 10 और 12 ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो विदाउट ट्रैप्स डायरेक्टली आंसर दिए गए होंगे. वेल, स्मॉल ट्विस्ट तो जरूर होगा एज फार एज एकेडमिक कंसर्न. इमेजिन अगर आप 30 ट्रैप्स एक ही टेस्ट में से ढूंढ लेते हैं व्हाइल यू आर डूइंग एनालिसिस, कितनी सारी स्टाइल आपके माइंड में डेवलप हो जाएगी, कितने टाइप के ट्रैप्स ये लोग बिछाते हैं ये डेवलप हो जाएगा जस्ट आफ्टर वन रीडिंग ओनली. ये आपको सेकंड रीडिंग में हेल्प करेगा, थर्ड रीडिंग में हेल्प करेगा. और इमेजिन तीनों रीडिंग के बाद आपने एनालिसिस करते वक्त यू हैव आल्सो थॉट लाइक दिस, यू हैव आल्सो फाउंड द ट्रैप्स. मतलब आप ना अब दूसरे लेवल के हो जाएंगे. यू विल फील पर्सनली. ठीक है, बच्चे बताते हैं ऐसे. इसमें आपको बहुत सारे मेहनत करने की जरूरत नहीं है. जस्ट यू नीड टू डू इज लिटिल स्मार्ट वर्क, है ना. ऑप्टिमम काम करें, कम टाइम में ज्यादा करें. आप हार्ड वर्क नहीं करते रहे, बस मतलब काम करना है, इतना क्यों नहीं है, ऐसा फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है. थोड़ी सी स्मार्ट वर्क कीजिए. ठीक है, तो मिलते हैं अगले हफ्ते शायद. एंड पॉसिबली इफ पॉसिबल we will try to give you the next tip this during this weekend. Till that, I hope you will enjoy this and you will apply this. You will try it yourself, you will test it yourself, and you will try to figure out the traps in the next reading itself. Thank you very much, all of you. See you soon, and goodbye, all of you. Thank you.